امریکہ میں اسلامی دعوت، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے، تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ جس نے انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے جوڑ دیا ہے، جن کتابوں نے انسان جو حتیٰ کہ ارطغرل اور پھر ان کے بیٹے عثمان، ان کی فکر اور ان کے ذہن کے اوپر جو غلبہ رہا ہے وہ ابن عربی کی فکر اور روحانی اثرات کا رہا ہے، جس کے نتیجے میں باطل دبا رہا اور صدیوں تک اسلام کا آفتاب ذوفشانی کرتا رہا ہے۔ یہ ولی کامل حضرت محی الدین ابن عربی، انہوں نے جب یہ بات فرمائی کہ وحدت الوجود، کہ ہر طرف جو ہے ایک ہی، بنیادی طور پر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ خاص مقام پر آ کر ہر صوفی نے یہ بات کی ہے، ہر صوفی نے یہ بات کی ہے کہ جب وہ اللہ کی تجلیات میں مستغرق ہوتا ہے، اور اس کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی ہو۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اینما تولو فثم وجہ اللہ، عاشق اور عارف کی نگاہ جدھر جو ہے وہ اٹھتی ہے اس کو خدا کے حسن کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجلیات الہیہ دکھائی دیتی ہیں، اس کو ہر ذرے میں حسن الوہیت اور جمال ربوبیت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے وحدت الوجود، اور اسی کے اوپر جو اب ہر صوفی جو ہے، اقبال نے بھی کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ تو کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، وہ جو جوش لن ترانی تھا، کہیں جوش لن ترانی تھا، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہا کہ صوفی اور عارف اور عاشق، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد کامل کی نگاہ سے ڈرو، وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کی عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی بصیرت اور فراست اس درجے پر چلی جاتی ہے کہ عارف جہاں دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جب وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے، تو اس کو ہر چیز میں اسی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ ہر صوفی بار ایک مقام یہ آتا ہے زندگی میں کہ وہ قطرہ دریا میں غرق ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر دریا کے ہی جولانیاں ہر طرف نظر آتی ہیں۔ غالب نے بھی کہا تھا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ، اور پھر ہمارے پنجابی ڈاکٹر وانی صاحب، پتہ نہیں آپ پنجابی سمجھ سکیں گے کہ یہ نہیں، یہ جو ہمارے بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی ایک مقام پر، اور یہ صوفیاء کہتے ہیں کہ ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شود، کہ ذاکر ذکر کرتا ہے اور ذکر کر کر کے ذاکر ہمہ ذکر، ذاکر کا اپنا وجود ذکر بن جاتا ہے، اس کا اٹھنا ذکر، اس کا بیٹھنا ذکر، اس کا کھانا ذکر، اس کا چلنا ذکر، اس کا بولنا ذکر، اس کا گفتگو کرنا ذکر، اس کا پڑھنا ذکر، اس کا پڑھانا ذکر، اس کا سونا ذکر۔ وہ سوتا ہے تو اس کی سانسیں اللہ اللہ کا ورد کر رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک مقام آتا ہے کہ ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شود، ذاکر ذکر بنا اور پھر ذکر مذکور بن گیا، پھر محب محبوب کے جلووں میں غرق ہو گیا، پھر عاشق محبوب و مطلوب کی محبت میں مستغرق ہو گیا، اور پھر ذاکر اپنا وجود اس کو معدوم سمجھتا ہے، اس کو جدر اینما تولو فثم وجہ اللہ، اس کو محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے، مطلوب ہی مطلوب نظر آتا ہے، مقصود ہی مقصود نظر آتا ہے۔ اور پنجابی شاعر اور صوفی اور درویش اور عارف کامل بلے شاہ نے کہا تھا کہ میں بھی توں تے توں بھی توں وچ بلا کون نہ مانا، کہ میں بھی توں ہاں اور تو میں بھی تو ہے اور تو بھی تو ہے، وچ بلا کون نہ مانا، میں کہاں سے آ گیا، سب کچھ ہے۔ یہی وحدت الوجود ابن عربی نے بھی فرمایا
सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू ने कहा था, अंदर भी हूं ते बाहर भी हूं ते बाहू किथे लबेंदा हूं, कि अंदर निगाह डालता हूं तो खुदा के जमाल के जलवे नजर आते हैं, बाहर देखता हूं उसी का हुस्न का दरिया ठाठे मारता नजर आता है, मैं कहां तलाश कर रहा हूं। ये वहदतुल वजूद है जिसका तसव्वुर इब्न अरबी मुहय्यिद्दीन ने पेश किया और लोगों ने इसके ऊपर एतराज किया। अब मैं डॉक्टर वानी साहब इसके ऊपर जो इस दौर में एक टीवी के ऊपर एक फिक्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बड़ी जो है वो आम तबके को उससे बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है, वो गांधी साहब की फिक्र है। गांधी साहब ने इसके ऊपर ये कहा, उन्होंने कहा कि जब आप मिर्जा कादियानी को आप जो है वो इस्लाम से खारिज करार देते हैं और कुफर के फतवे लगाते हैं जो वजह तौर पर दुरुस्त है हमारे नजदीक, वो कहते हैं कि वो बातें चंद बातें तो ऐसी हैं कि जो बायजीद बुस्तामी ने भी की, मंसूर हल्लाज ने भी की, इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी की, तो इनका हवाला दे करके गांधी साहब ने और उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि जो स्पेस आप इब्ने अरबी को देते हैं, जो स्पेस आप बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को देते हैं, जो स्पेस आप जो है मंसूर हल्लाज को देते हैं, वो मिर्जा कादियानी को क्यों नहीं देते। ये बहुत बड़ा फितना है इस दौर में। नौजवान नस्ल पढ़ी लिखी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, उनके जहनों में ये जहर उंडेला जा रहा है कि वही बातें तो उन्होंने की। जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर वानी साहब, आपका ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और भी देखा जाएगा, पूरी दुनिया में देखा जाएगा सोशल मीडिया के जरिए। ये मैं ये तस्वर वाज़े करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा जहर है जो ज़हनों में उंडेला जा रहा है। कहते हैं वही मार्जिन आप मिर्जा कादियानी को क्यों नहीं देते। तो सुन लें कि मिर्जा कादियानी ने सरीहतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार किया है और उसने कहा है कि जो है वो मेरे ऊपर वही इस तरह नाज़िल होती जिस तरह आसमान से बारिश बरसती है। लेकिन मिर्जाई अपने बातिल अकायद की ताईद में हजरत इब्ने अरबी की फतूहात मक्किया का हवाला देते हैं कि हजरत मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी फरमाते थे कि कोई उम्मती पैगंबराना मुशाहिदात से गुजर सकता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर एक मकाला लिखा। उन्होंने कहा कि मैंने फतूहात मक्किया के मुतालिका हिस्से का खुद मुताला किया है और उसमें मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो है वो ये कौल जो इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह का है, ये तो खुद कादियानियों के खिलाफ जाता है। उनका ये फरमाना कि कोई उम्मती पैगंबराना मुशाहिदात से गुजर सकता है, इसमें ये कहां साबित होता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबुव्वत जब जो है हुजूर के बाद कोई और नबी आ सकता है, ये कहां साबित होता है। और फिर साथ आपने ये लिखा अल्लामा इकबाल ने अपने मकाले में कि अगर इब्ने अरबी को कशफ के जरिए ये बात मालूम हो जाती कि बरे सगीर में पाको हिंद बरे सगीर में जो उस वक्त तो ये जो है बाद में सारी डिवीजन हुई, इस समय सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा फितना पैदा होने वाला है जो मुसलमानों के अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर हमला करेगा और इस अकीदे के ऊपर जो है मुसलमानों को मुतज़ब्ज़ब करेगा चंद मुसलमानों, तो वो जरूर जो है वो लोगों को आगाह कर देते। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फतूहात मक्किया की रोशनी में कहा कि इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल के उम्मती पैगंबराना मुशाहिदात से गुजर सकता है, फरमाया कि ये कादियानियों के हक में नहीं, ये उनके खिलाफ का कौल जाता है। जहां तक ताल्लुक है पैगंबराना मुशाहिदात से गुजरने का, तो उसका मतलब तो ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी में भी आई और मुस्लिम में भी आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सच्चा ख्वाब है वो नबुव्वत के का 46वां हिस्सा है, 46वां हिस्सा है। तो मुबश्शिरात नबुव्वत बाकी है, मुबश्शिरात नबुव्वत बाकी है, कमालात नबुव्वत बाकी है, मुबश्शिरात बाकी है, अनवार नबुव्वत बाकी है। नबुव्वत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर खत्म हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों मुबारक उंगलियों को जोड़कर फरमाया था और कायनात की सारी उंगलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ और हुजूर की उंगलियां अफजल है। हुजूर ने फरमाया था आना
वस्सात कहातैन, फरमाया ये जिस तरह ये दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं, मेरा जमाना नबुव्वत और क़यामत इस तरह जुड़े हुए हैं। क़यामत तक नबुव्वत रहेगी तो मुस्तफ़ा की, रिसालत रहेगी तो मुस्तफ़ा की, क़यादत रहेगी तो मुस्तफ़ा की, सियादत रहेगी तो मुस्तफ़ा की, लीडरशिप रहेगी तो मुस्तफ़ा की। तो क़यामत तक, बल्कि क़यामत का जो 50,000 साल का दिन होगा वो भी नबुव्वत मुस्तफ़ा का दिन होगा, और क़यामत के बाद का जो दिन है वो भी अल्लाह पाक रसूलुल्लाह की नबुव्वत का दिन, अल्लाह की हाकिमियत और मोहम्मद अरबी की नबुव्वत रिसालत का दिन रहेगा। कहा गया कि फकत इतना सबब है इन इकादे बस्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो मुबशरात नबुव्वत बाकी हैं, कमालात नबुव्वत बाकी हैं, अनवार नबुव्वत बाकी हैं, और तमाम जो है औलिया, सूफिया, माशाल्लाह, बहुत खूब। अतकिया उन्हीं अनवार के अंदर गोताज़न होते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मंजिल मकसूद तक पहुंचे। बाकी सब उसकी उस हकीकत जो है, वो इकबाल ने कहा था ना, कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में, हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। कि जिसके लिए मैं जो है वो सजदे करता हूं, वो हकीकत उस्मा, वो हकीकत कुबरा। कहा कभी नजर आ लिबासे मजाज में। तो शेख इब्ने अरबी, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ने जो नजरिया वजूद पेश किया, तो यही तसव्वुर दिया कि कायनात के जर्रे जर्रे में खुदा का हुस्न, खुदा का जलवा दिखाई देता है। मैं कंक्लूड करने की तरफ लाता हूँ डॉक्टर वानी साहब। सही हुजूर, सही हुजूर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो खुतबात है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट, फिक्र इस्लामी की तश्कील नौ, उसमें जो छठा लेक्चर है वो उन्होंने हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह एक सूफी के कौल से शुरू किया। आप अंदाजा करें, वो कहते हैं कि हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते थे कि जो है वो आप इरशाद फरमाते थे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मुलाकात के लिए गए मेराज पर, और मुलाकात करके वापस आ गए। अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये था, इकबाल फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर मैं खुदा से मुलाकात के लिए जाता तो मैं वापस ना आता। तो आम आदमी इस कौल को पढ़ के आम आदमी बड़ा हैरान होता है कि किस किस्म की बात कह दी कि रसूल खुदा अल्लाह से मुलाकात करके वापस तशरीफ ले आए, मैं अगर खुदा से मुलाकात करता तो मैं वापस ना आता। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तसव्वुफ के पूरे लिटरेचर में मुझे इससे ज्यादा जो है वो गहरी बात नहीं मिली कि जो नबुव्वत और वलायत के फर्क को वाज़े कर दे कि नबी उन बुलंदियों पर जाता है कि उन्हीं कमालात और मुशाहिदात के ऊपर एक सोसाइटी और एक मुआशरा और एक निज़ाम कायम करे, और वली उन तसव्वुरात में खोता है और उन तसव्वुरात और जलवों में मगन होता है और लज्जतें हासिल करता है और उन्हीं में मुस्तगरक रहता है, और नबी आता है ताकि ऐसा मुआशरा कायम कर दे। हारिसा बिन नुमान की तरह जो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किस तरह सुबह की है, तो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैंने ईमान कामिल के साथ सुबह की है। तो हुजूर ने इरशाद किया, और मेरी कैफियत यह है कि मैं देख रहा हूँ जन्नती जन्नत में जा रहे हैं और जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं, और या रसूलल्लाह मैं कानी अनसुरु इला अर्श रब्बी बारिसन, मैं खुदा का अर्श भी देख रहा हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तो नहीं फरमाया कि ये जो इनको क्या हो गया है, हुजूर ने यही फरमाया था कि ये वो शख्स है, ये वो बंदा मोमिन है जिसके दिल को रब ने रोशन कर दिया है, और जिसका दिल रोशन हो जाए अर्श और फर्श की सारी मुसाफतें उसके लिए तय हो जाती है। अर्श और फर्श की जो करोड़ों सालों की मुसाफतें हैं, जिसका दिल रोशन हो जाए दिल दरिया से होंगे, सुल्तानुल आरिफीन ने कहा था। तो हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह उसी दरियाए मारिफत में गोताज़न हुए, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात में जो है वो मुस्तगरक हुए, और सिर्फ उसमें इस कैफियत में जज़ब की कैफियत में नहीं गए, जज़ब की कैफियत में कि खुद ही गोते लगाते रहे, बल्कि आप उस कैफियत से निकलकर सलूक की कैफियत में भी आए, और आपने 400-500 किताबें जो लिखी, उम्मत को इल्म का इतना बड़ा खजाना दिया कि जो है वो इमाम शुअरानी ने आपकी तशरीहात की, और फिर अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी ने नफ़क़ातुल उन्स में उनकी तशरीहात की।
آج مغرب کی یونیورسٹیز، امریکن یونیورسٹیز بھی ابن عربی کی فکر کو جو ہے وہ آن کرتی ہیں، تسلیم کرتی ہیں کہ یہ وہ عظیم صوفی تھا، اور کہ جس نے کہ جو اسپرچل امپیکٹ ہے اسلامک کلچر کے اوپر، اسلامک سیولائزیشن کے اوپر، اسلامک مائنڈ سیٹ کے اوپر، اسلامک ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر، اسلامک جو ہے وہ جو ایک تحریری ورثہ ہے اس کے اوپر اتنا گہرا امپیکٹ ہے ابن عربی کا کہ کوئی بھی جو حقیقی عالم ہوگا، حقیقی صوفی ہوگا، وہ ابن عربی کی فکر سے متاثر ہوئے بغیر، اس سے انسپائریشن لیے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں سکے گا۔ صحیح سر، جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ علامہ اقبال کے انہی اشعار پر پھر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، آپ کو مبارکباد بھی پھر دوں گا اور ختم کروں گا۔ اقبال نے کہا دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشائے معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ابن عربی کے فضیلت و کمالات سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔